بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی 2009 کی ہے۔ میں اور میری وائف زلیخا سو رہے تھے۔ رات کے 1 بجے میرے دوست یاسین کی کال آئی۔ ہیلو علی، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ میں بہت حیران ہوا، اس کو کیا ہوا؟ مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ بھی کوئی وقت ہے مذاق کا؟ نہیں علی، اللہ کا واسطہ مجھے بچا لے۔ اس بار اس کی آواز میں عجیب سا خوف تھا۔ میں آتا ہوں۔ میں نے بھی یہ کہا ہی تھا کہ کال کٹ گئی۔ میں خود ڈر گیا تھا۔ میں جلدی اٹھا، زلیخا کو اٹھایا اور اپنی گن ساتھ لی۔ کیا ہوا علی، اتنے پریشان کیوں ہو؟ زلیخا نے اٹھتے ساتھ سوال کیا۔ یار آپ دروازہ بند کرو، میں یاسین کے گھر جا رہا ہوں، اس کی کال آئی ہے، وہ بہت پریشان تھا۔ اللہ خیر کرے، آپ آرام سے جانا، اپنا خیال رکھنا، رات بہت ہو گئی ہے، زلیخا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈونٹ وری۔ میں زلیخا کو دلاسا دے کر جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور یاسین کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ یاسین میرا بچپن کا دوست تھا۔ 2 ہفتے پہلے ہی اس کی شادی رانیہ سے ہوئی تھی اور بہت خوش تھا وہ۔ آج اچانک ایسا کیا ہو گیا اور اسے کون مارنا چاہتا ہے؟ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں یاسین کا گھر آ گیا۔ یاسین کا گھر شہر سے تھوڑا باہر تھا، بڑے قبرستان کے قریب۔ میں فٹافٹ گاڑی سے اترا اور یاسین کے گھر کا گیٹ نوک کیا۔ یاسین یاسین، میں زور سے پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گھر میں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ میں بھاگ کر گھر کے پیچھے کی طرف گیا۔ وہاں کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں خون کے تازہ نشان تھے۔ میں کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ لائٹ آف تھی۔ میں نے موبائل کی لائٹ آن کی اور یاسین کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ یاسین کے کمرے میں جاتے ہی میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرے اوزان خطا ہو گئے۔ بیڈ کے پاس زمین پہ یاسین خون میں لت پت پڑا تھا۔ میں نے چیک کیا تو وہ مر چکا تھا اور بھابھی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کمرے سے کھڑکی تک خون کے دھبوں کے نشان تھے جو ننگے پیروں کے تھے۔ میں نے فوراً اپنے دوست مسعود کو کال کی جو پولیس میں تھا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے حوصلہ رکھنے اور جتنی جلدی ہو سکا میرے پاس آنے کا یقین دلایا۔ میں نے سوچا کہ پیروں کے نشانات کا پیچھا کیا جائے۔ میں موبائل ٹارچ کی روشنی میں نشانات کا پیچھا کرنے لگا۔ نشانات پچھلی گلی سے ہوتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے نے قبرستان کو بہت وحشتناک بنا دیا تھا۔ میں بھی قبرستان کے گیٹ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مسعود کی کال آ گئی۔ ہیلو علی، کہاں ہو؟ میں یاسین کے گھر پر ہوں، مسعود نے کہا۔ یار میں گھر کی پچھلی طرف قبرستان کے پاس ہوں، میں نے جواب دیا۔ اوکے میں آیا، مسعود نے کہا اور کال کاٹ دی۔ چند لمحوں بعد مسعود میرے پاس آ گیا۔ علی یار بہت افسوس ہوا، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسعود نے آتے ہی سوال کیا۔ میں ان نشانات کے پیچھے آیا۔ تھینکس یار فوراً میرے پاس آنے کے لیے۔ یاسین کا کوئی دشمن تھا؟ اور بھابھی کہاں ہے؟ کچھ پتا چلا ان کا؟ مسعود نے پوچھا۔ نہیں یار، وہ تو ایک شریف انسان تھا اور بھابھی کا کچھ پتا نہیں چلا، میں نے کہا۔ چلو نشانات کا پیچھا کیا جائے۔ میں نے ایمبولینس کو کال کی ہے، وہ آتی ہی ہوگی، مسعود نے کہا اور ہم نشانات کے پیچھے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ نشانات ایک درخت کے پاس آ کر ختم ہو گئے۔ چلو درخت کے پیچھے دیکھتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم درخت کے پیچھے گئے۔ درخت کے پیچھے قبر کے پاس کا منظر دیکھ کر ہم خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے جو سوچا بھی نہیں تھا وہ ہو گیا۔ وہ یاسین کی وائف رانیہ تھی جو قبر کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پیر خون سے بھرے ہوئے تھے۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب یاسین کا خون بھابھی نے کیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھ کر تو مجھے بھی یہی لگتا ہے، مسعود نے کہا۔ چلو اس کو اسپتال لے چلتے ہیں، میں نے کہا۔ مسعود نے فوراً ایمبولینس منگوائی اور میں گھر آ گیا۔ کیا ہوا؟ یاسین بھائی کیسے ہیں؟ میرے گھر پہنچتے ہی زلیخا نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ یاسین اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میں نے زلیخا کو ساری بات بتا دی۔ اوہ اللہ تعالی رحم فرمائے، زلیخا نے کہا۔ اچھا میں تھوڑا آرام کر لوں، میں نے کہا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ سونے کی کوشش کرنے لگا مگر نیند کوسوں دور تھی۔ میری آنکھ صبح 10 بجے کھلی۔ میں فریش ہو کر ناشتے والی ٹیبل پر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ مسعود کی کال آئی۔ یار تم سے بھابھی کے بارے میں کچھ معلومات کرنی ہے، تھانے آ سکتے ہو؟
भाभी को होश आया? मैंने झट से सवाल किया। नहीं यार, अभी भाभी को होश तो नहीं आया, लेकिन कुछ जरूरी बात करनी है, मसूद ने कहा। ओके, मैं नाश्ता करके आता हूँ। ये कहकर मैंने कॉल काट दी और जल्दी से नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद मैं मसूद के थाने पहुंच चुका था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? मैंने थाने के अंदर जाते हुए मसूद को कहा। वालेकुम अस्सलाम। आओ यार, तुमसे कुछ जरूरी मालूमात लेनी है भाभी के बारे में। क्यों, क्या हुआ भाभी को? मैंने तजस्सुस भरी नजरों में मसूद को देखते हुए सवाल किया। भाभी की बैकग्राउंड के बारे में जानना है, कहाँ से हैं, क्या करती हैं और किस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, मसूद ने सवाल किया। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि भाभी के आगे पीछे कोई भी नहीं है और इनकी फैमिली में सिर्फ इनका चाचा है। इनके माँ बाप किसी कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे, मैंने बताया। यार, सारा मामला देखकर शक भाभी पर ही जाता है और मैं इस मामले की बहुत अच्छे से छानबीन कर रहा हूँ। अगर कहीं से भी कोई सुराग मिला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, मसूद ने जवाब में कहा। मैंने मसूद को खुदा हाफिज कहा और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मुझ में गम और परेशानी के मिले जुले तासुरात थे और मुझे बार बार यासीन का और भाभी का ख्याल आ रहा था कि ये सब क्यों और कैसे हुआ होगा। रात के 11 बज रहे थे। खाने के बाद जुलेखा से यासीन और भाभी के बारे में बात कर रहा था कि अचानक मसूद की कॉल आई। हेलो अली, कहाँ पर हो? जल्दी आओ। क्यों, क्या हुआ? मैंने परेशानी के आलम में मसूद से पूछा। तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें बताता हूँ। यासीन और भाभी के केस के बारे में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। ओके, मैं आता हूँ। ये कहकर मैं फौरन अपने बेड से उठा। क्या हुआ? किसका फोन था? जुलेखा ने सवाल किया। इंस्पेक्टर मसूद का फोन था। भाभी और यासीन के बारे में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, इसलिए उसने मुझे कॉल की। अच्छा ठीक है, अल्लाह खैर करे, अपना ख्याल रखिएगा, जुलेखा ने कहा। तुम फिक्र मत करो, दरवाजा लॉक कर लो। ये कहकर मैं फौरन बाहर आया, गाड़ी स्टार्ट की और मसूद के घर चल पड़ा। जब मैं मसूद के घर पहुंचा तो मसूद पहले ही दरवाजे के पास मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने गाड़ी पार्क की और मसूद से अलेक्स लेक के बाद हम इसकी बैठक में चले गए। हाँ तो मसूद, इस केस में ऐसी क्या पेशरफ्त हुई है जिसके बारे में बताने के लिए तुमने मुझे इतनी रात को कॉल की? मैंने बेचैनी से पूछा। यार अली, हमारे जाने के कुछ देर बाद पास वाले गांव के थाने से कॉल आई। उसने कुछ मालूम करना था। वहाँ का थानेदार मेरा कजन है। बातचीत के दौरान जब मैंने उससे यासीन के केस के बारे में बताया तो वो चौंक गया और कहने लगा, बिल्कुल ऐसा ही एक केस 3 महीने पहले इसके गांव में पेश आया। जो बंदा इस गांव में कत्ल हुआ उसकी शादी को भी अभी बमुश्किल 2 हफ्ते ही हुए थे और वहाँ भी ऐसे ही खून के धब्बों के निशानात पाए गए, लेकिन वहाँ से हमें कोई सुराग नहीं मिल सका। मैं ये सुनकर फौरन उसके पास गया और अपने कजन के साथ मिलकर आज सारा दिन इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला कि पिछले 3 साल में ऐसे 10 वाकयात हो चुके हैं जिसमें शादी के 2 हफ्ते के बाद खावंद की लाश मिलती है और वहाँ पर ऐसे ही खून के धब्बों के निशानात पाए जाते हैं। ये सुनकर मैं चौंक सा गया और मुझ पर एक वहशत सी तारी हो गई। मसूद की इस बात ने मुझे बहुत चौंका दिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। असल में जो पिछले वाकयात हुए हैं उनमें और यासीन के केस में कोई भी फर्क नहीं है। उनका घर भी आबादी से थोड़े फासले पर कब्रिस्तान के पास था और उनकी शादी भी यकायक ही हुई थी, मसूद ने मजीद बताया। लेकिन यार, इस बात का क्या सबूत है कि वो रानिया भाभी ही थी? मैंने पूछा। मैं इस बार सबूत लेके ही आया हूँ, ये कहकर मसूद ने अपना फोन निकाला और मुझे तस्वीर दिखाई। मैं और मेरा कजन ये तस्वीर लेकर इन जगहों पर गए थे जहाँ पर ये वाकयात हुए हैं और वहाँ पर रहने वाले सब लोगों ने ही इस तस्वीर को पहचान लिया और हर गांव में इसका नाम अलग था। मेरे कजन के गांव में इसका नाम सानिया, जबकि इससे पिछले गांव में इसने अपना नाम आयशा बताया था। मेरा दिमाग इस टाइम सुन्न हो चुका था और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाभी ऐसा भी कर सकती हैं। कल सुबह हम हॉस्पिटल चलेंगे और वहाँ पर जाकर देखेंगे, मसूद ने कहा।
मैंने परेशानी और हैरानी से मिले जुले तासुरात में मसूद से इजाजत ली और अपने घर आ गया। सारे रास्ते मैं यही सोचता रहा। मेरे जहन ने बहुत से सवालों को जन्म लिया था। घर पहुंचकर जब मैंने जुलेखा को इन सब बातों के बारे में बताया तो वो इस पर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रानिया भाभी तो शक्ल से बेहद मासूम और शरीफ थी और वो तो बहुत ही फरमाबरदार थी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यकीनन मसूद भाई को कोई गलत फहमी हुई है, जुलेखा ने कहा। नहीं यार, इस बार तो मसूद के पास पक्के सबूत हैं और उन्होंने इसके बाद ही मुझे बुलाकर इन सब बातों के बारे में बताया और मैं इस वक्त शदीद हैरान हूँ। अब कल जाकर हम हॉस्पिटल में बाकी सारी बातों का पता लगाएंगे। जैसे तैसे करके मैंने ये रात गुजारी। सुबह सवेरे ही मैं मसूद के घर गया और उसको साथ लिया और हम हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर साहब, क्या रानिया को होश आया? मसूद ने पूछा। वो बिल्कुल ठीक है और हमें उम्मीद है उनको 24 घंटों तक होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा। यार, मुझे तो ये बात कुछ गड़बड़ लगती है। हमें चाहिए कि हम किसी बाबा जी से इस बारे में बात करें, मैंने मसूद को कहा। ठीक है, मैं लेडी कांस्टेबल को छोड़ जाता हूँ और फिर हम चलते हैं। मेरे जानने वाले एक बाबा जी हैं, मसूद ने कहा। बाबा साकिब जी, मसूद ने कहा। लेडी कांस्टेबल के आ जाने के बाद हमने उसको भाभी के पास छोड़ा और गाड़ी लेकर पीर साहब के पास निकल पड़े। जब हम वहां पहुंचे तो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे। हमने भी वजू किया और वहां पर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हम बाबा जी के पास गए और सलाम दुआ करने के बाद उन्हें सारा वाकया बताया। बाबा जी ने चंद लम्हों के लिए आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, ये क्या मामला है, जाओ जाके पता लगाओ। और फिर वो हमसे मुखातब हुए। मैंने मुवक्किल को भेजा है, थोड़ी देर इंतजार करें, इसके बाद सारे मामले का पता चल जाएगा। ये कहने के बाद बाबा जी अमल में मसरूफ हो गए और मैं और मसूद वहाँ से बाहर आ गए। हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। हम अपने साथ बर्गर और बोतल लेकर आए थे। वो खाना शुरू कर दिया। अभी हम बातों में मसरूफ ही थे कि अचानक मसूद को हॉस्पिटल से कॉल आई। हेलो सर, एक बुरी खबर है, डॉक्टर ने घबराई हुई आवाज में मसूद से बात की। क्या हुआ डॉक्टर? सब खैरियत तो है? रानिया ठीक तो है? सर, वो लेडी कांस्टेबल को मारकर यहाँ से भाग गई है और लेडी कांस्टेबल के जिस्म में खून का कतरा भी नहीं है। ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? आपने तो कहा था कि इसको कम से कम 24 घंटे के बाद होश आएगा, मसूद ने डॉक्टर साहब को कहा। सर, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। इनकी हालत के मुताबिक इनको कम से कम 24 घंटे से पहले होश में आना नामुमकिन था, लेकिन ये सब कैसे हुआ किसी को नहीं पता, डॉक्टर ने डरी हुई आवाज में कहा। ओके, मैं कुछ देर बाद पहुंचता हूँ, ये कहकर मसूद ने कॉल काट दी। क्या हुआ? मैंने मसूद को परेशानी के आलम में देखकर पूछा। यार, रानिया वहाँ से लेडी कांस्टेबल को मारकर भाग गई है। डॉक्टर साहब का फोन आया था। ओ खुदाया, कितनी बुरी खबर है। ना जाने अभी कितने मासूम लोगों की जान जाएगी, मैंने परेशानी के आलम में कहा। चलो बाबा जी के पास चलते हैं, मसूद ने कहा और हम वहाँ से बाबा जी के पास चले गए। आओ बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बाबा जी ने कहा। मैंने पता लगा लिया है, इसके पीछे इस चुड़ैल का हाथ है जो कि आधी चुड़ैल और आधी औरत है। ये इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है। आज से कुछ साल पहले इस चुड़ैल को हिंदू पंडित ने चिल्ला काट कर अपने कब्जे में किया था, लेकिन बाद में वो चुड़ैल इसको अच्छी लगने लगी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और मासूम थी। चुड़ैल से इस वादे के साथ कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगी कहकर दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद उनके मिलाप से ये बच्ची पैदा हुई। इस बच्ची के पैदा होने के चंद साल बाद इसके माँ बाप गुजर गए। इसके बाद इसके चाचा ने इसको पाला। जैसे जैसे ये जवान होती गई वैसे वैसे इससे चुड़ैल के आसार नमूदार होने लगे। इसका चाचा इस बात से नावाकिफ है। ये शादी करती है तो शादी करने के कुछ दिनों बाद अपने खावंद का खून पीकर अपनी प्यास बुझाती है और हफ्तों गायब रहती है। फिर कुछ दिनों के इंतजार के बाद अपने दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। तो इसका चाचा बार बार इसकी शादी क्यों करवा देता है? मैंने भरे अंदाज में बाबा जी से पूछा।
जब वो अपने खामद को मार कर भाग जाती है तो इसके बाद इसका चाचा हफ्तों पुलिस थानों के चक्कर लगाता है। कुछ हफ्तों के बाद वो फिर अपनी भोली सी सूरत लेकर वापस आ जाती है। ये भी अपनी माँ की तरह खूबसूरत, मासूम और चालाक है और लोग इसकी बातों में आ जाते हैं। इसका अंदाज इंतहाई मासूमाना होता है और हर बार कोई नई कहानी सुनाती है जिसकी वजह से किसी को शक भी नहीं होता। इसका चाचा पिछला गांव छोड़कर आया था क्योंकि 6 शादियों के बाद गांव वालों ने इसको मनहूस समझकर इनको गांव से निकाल दिया था। लेकिन इस बार ये कैसे पकड़ी गई? मैंने बाबा जी से सवाल किया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चुड़ैल होने के साथ साथ इंसान भी है। जब ये अपना शिकार करके भाग रही थी तो भागते भागते थक गई और अंधेरा ज्यादा होने की वजह से दरख्त से टकराकर बेहोश हो गई। और इसके पकड़ने की एक वजह ये भी है कि तुम्हारे दोस्त ने कुछ लम्हे पहले ही तुम्हें फोन कर दिया था, बाबा जी ने कहा। हाँ बाबा जी, इसका फोन आते ही मैं फौरन घर से निकल पड़ा था और इसके घर से मेरे घर का फासला भी बहुत थोड़ा है। मैं बहुत जल्द वहां पर पहुंच गया था। मैंने कहा, अब इसको सजा देनी है या फिर हमेशा के लिए मारना है? बाबा जी ने कहा, क्या इस पर गोली असर करेगी? मसूद ने कहा, हाँ करेगी, लेकिन गोली से इसकी मौत वाक़या नहीं होगी। गोलियां सिर्फ इसको जख्मी कर सकती हैं, वो भी तब तक जब तक ये आम इंसान है। चुड़ैल के रूप में आते ही इसके जख्म भर जाएंगे, बाबा जी ने कहा। न जाने इसने कितने मासूम लोगों की जान ली है, खास तौर पर मेरे दोस्त यासीन की। इसको मैं किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे मैं इसे ख़त्म कर दूं। मैंने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, बाबा जी ने कहा। ये लो सत्तू के दाने। कब्रिस्तान में किसी पुरानी सी ऐसी कब्र जिसके पास दरख्त हो, वहाँ पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला करना है। और एक बात अच्छे से याद रखना, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं तुम्हें बुलाऊं या तुम्हारा दोस्त यासीन की रूह आए और कहे कि अली अमल छोड़ दो, मैंने उसे माफ कर दिया है, या चाहे मसूद आए या बेशक तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास आ जाए, बाहर नहीं निकलना और ना ही अपना अमल छोड़ना है। दिन में सारा दिन किसी से बात नहीं करनी और इशा का टाइम होते ही तुमने अपना अमल शुरू कर देना है। जब तक फजर की अजान तुम्हारे कानों में ना पड़े तुमने अमल नहीं छोड़ना। यही बेहतर होगा कि तुम अपने काम से छुट्टी ले लो। ये कहने के बाद बाबा जी ने मुझे वो अमल बताया जो चिल्ले में पढ़ना है। बाबा जी से दुआ लेकर मैं वहाँ से रुखसत हो गया। अब मेरा इरादा जल्द अज जल्द इस चुड़ैल को अपने अंजाम पर पहुँचाना था। यार अली, तुम ये अमल ठीक से कर लोगे ना? मसूद ने रास्ते में मुझसे पूछा। इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा। मुझे इन सब मासूमों और ख़ुसूसन अपने दोस्त की मौत का बदला लेना है, चाहे जो भी हो जाए। मैं उसे अपने अंजाम पर पहुंचा कर रहूँगा, मैंने उसे जवाब दिया। घर पहुंचने के बाद मैंने जुलेखा को सारी बात बताई और उसे दिलासा दिया कि परेशान मत होना, मैं अपने दोस्त की मौत का बदला लेकर ही चैन से बैठूंगा। ये रात भी बेचैनी में गुजरी। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले दफ्तर से जाकर 8 छुट्टियां ले ली क्योंकि 7 दिन का चिल्ला था और इसके बाद मुझे 1 दिन आराम के लिए भी चाहिए था। इसके बाद मैंने अपना ज़रूरी सामान लिया, मसूद से मिला और फिर बाबा जी से इजाज़त लेने के बाद घर गया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं कब्रिस्तान पहुंच गया जो कि यासीन के घर के पास था क्योंकि वो ही सबसे बड़ा और पुराना कब्रिस्तान था। थोड़ी सी मेहनत के बाद मुझे वो पुरानी कब्र मिल ही गई जो कि एक दरख्त के पास थी। 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर हसार खींचा और बैठकर अपना अमल करने लगा। बगैर किसी फिक्र और परेशानी के ये रात सुकून से गुजर गई। उसके बाद अपना अमल जारी रखा और 4 दिनों तक मुझे किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं अपना अमल करता और घर आ जाता, सुबह को अपनी नींद पूरी करता जबकि रात में अमल करता। ये अमल की चौथी रात थी। मैंने रोजमर्रा की तरह हसार खींचकर अमल करना शुरू किया।
थोड़ी देर बाद अचानक बहुत सारे बादल एकदम आ गए और बादल जोर से गरजे। शदीद बारिश होने लगी और ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये आम बारिश नहीं बल्कि खून की बारिश थी जो कि मेरे हसार से बाहर हो रही थी। हसार के अंदर एक कतरा भी नहीं गिरा था। मैं काफी डर सा गया था। अल्लाह अल्लाह करके वो रात गुजरी। मैं घर आ गया। 5वीं रात भी बगैर किसी परेशानी के गुजर गई। आज अमल की 6ठी रात थी। मैंने हस्बे मामूल हसार खींचकर अपना अमल शुरू कर दिया। अभी मुझे अमल करते हुए 3 ही घंटे गुजरे होंगे कि सामने कब्र के पास झाड़ियों में किसी की आहट महसूस हुई। वो कोई जानवर था जो अचानक मेरे सामने आ गया। उस जानवर को देखकर यूं लगा जैसे अभी मेरा दिल बाहर आ जाएगा। खौफ के मारे आंखें फट गईं और मेरा जिस्म कांप रहा था। इस जानवर के 2 मुंह थे, एक भेड़िए के जैसा, एक चीते के जैसा, और दोनों की लंबी सांप की तरह जुबान थी। वो मेरे पास आया और हसार के पास आकर कहने लगा, चले जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। इसकी आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि मैं अपना अमल भी भूल गया था और मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने जैसे तैसे करके अपने हवास पर काबू किया और जोर से अपना अमल पढ़ने लगा। मुझे जोर से अमल करता देखकर वो जोरदार आवाज में गरजा, अच्छा तो तुम बाज नहीं आओगे, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहकर वो मेरी तरफ दौड़ा लेकिन हसार से टकराकर गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ मेरी जान में जान आई। अल्लाह अल्लाह करके ये रात भी गुजरी, लेकिन इस वाक़े के बाद मुझ पर बहुत ज्यादा खौफ तारी था। उस जानवर को देखकर एक मर्तबा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं घर आया, खाना खाया और लेट गया। थकावट की वजह से मुझे फौरन नींद आ गई। अगले दिन असर के वक्त मेरी आंख खुली। मैंने नमाज पढ़ी, खाना खाया और चीले की तैयारियों में मसरूफ हो गया। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम था। कब्रिस्तान के पास मौजूद मस्जिद में मैंने इशा की नमाज अदा की। आज मौसम बड़ा साफ था, चांद अपने जोबन पर था, जिसकी वजह से इर्द गिर्द हर चीज साफ नजर आ रही थी। मैंने अपना अमल शुरू किया। दिल और जहन में बहुत खौफ था, लेकिन मुझ में बदला लेने का जुनून सवार था। अभी अमल को 1-2 घंटे ही गुजरे थे कि दूर से मसूद आता दिखाई दिया और कहने लगा, मैंने रानिया को माफ कर दिया है, चलो आ जाओ, उठो। मेरे जहन में बाबा जी की बात याद आ गई थी कि रानिया चुड़ैल हर रूप में आएगी, इसलिए मैं आंखें बंद करके अपने अमल में मसरूफ रहा। चलो यार उठो, क्या कर रहे हो, ये कहकर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इसका हाथ जैसे ही हसार से टकराया वो एकदम गायब हो गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही देर के बाद दूर से रानिया भाभी आती दिखाई दी और मेरे पास आकर ज़ारो कतार रोने लगी। प्लीज अली भाई मुझे माफ कर दें, मैंने जो कुछ किया अनजाने में किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो मुझसे कहने लगी। लेकिन मैं अपने अमल में मसरूफ रहा और मैंने इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। अमल खत्म होने में कुछ देर ही बाकी थी कि कब्रिस्तान में जोर से जलजला आने लगा। सारी कब्रें फटने लगी और कब्रों से मुर्दे उठकर बाहर आने लगे। जिस कब्र पर मैं अमल कर रहा था वो कब्र भी लर्जने लगी और उसके अंदर से भी अजीबोगरीब सी आवाजें आने लगी। खौफ और दहशत से मेरा बुरा हाल था। इतने में सामने रानियां दिखाई दी और साथ में बाबा जी भी थे। बाबा जी कहने लगे कि छोड़ो, हम सब ने इसको माफ कर दिया है। और मुझे पीछे यासीन भी खड़ा हुआ नजर आया। यासीन भी कहने लगा कि हम सब ने इसको माफ कर दिया है, तुम अपना अमल छोड़ो और वहाँ से उठ जाओ। मैं वहाँ से उठने ही लगा था कि अचानक मेरे कानों में बाबा जी की आवाज आई, अली ये सब नजरों का धोखा है, तुम अपने अमल पर तवज्जो दो। मैं सोचने लगा कि मैं ये क्या बेवकूफ़ी करने लगा था। मैं दोबारा बैठ गया और अपना अमल शुरू कर दिया। रानिया की सूरत तब्दील होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता चुड़ैल की सूरत अख्तियार कर चुकी थी। उसका चेहरा इंतहाई भयानक था। वो जोर से गरजी, यहाँ से फौरन उठ जाओ वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को मार दूंगी। मैंने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी।
अचानक वो मेरी वाइफ जुलेखा को पकड़ के ले आई और इसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए और बोली, अगर तुमने अमल ना छोड़ा तो मैं इसको मार दूंगी। जुलेखा जोर से चिल्लाई, प्लीज अली मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। प्लीज अली, मुझे पता था कि ये सब नजरों का धोखा है। चुनाचा मैंने आंखें बंद की और जोर जोर से अमल पढ़ने लगा। अब वहाँ से जुलेखा, बाबा जी, यासीन और मसूद गायब हो चुके थे। सिर्फ वो मुर्दे और रानियां वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने मुर्दों के साथ मिलकर मुझ पर पत्थरों की बारिश कर दी, लेकिन जो भी पत्थर हसार से टकराता वहीं पर भस्म हो जाता। जिस कब्र पर मैं अमल करने लगा था वो भी अब जोर से हिलने लगी थी। डर और दहशत के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने आंखें बंद करके अपने अल्लाह से मदद की फरियाद की और जोर जोर से अमल पढ़ने लगा। इतने में मुझे दूर से अजान की आवाज आई। मैंने आंखें खोली तो बाहर रानिया का जिस्म जल रहा था और दूर से मुझे जुलेखा, मसूद और बाबा जी आते दिखाई दिए। उन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। रानिया का जिस्म जलकर अब राख बन चुका था। मसूद ने इस राख को पास ही मौजूद गड्ढे में डालकर गड्ढे को बंद कर दिया था। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने बहुत से मासूम लोगों और अपने दोस्त का बदला ले लिया था।